पाय नमो नमः पाद्योर पाद्यम दीपम दर्शयामि नैवेद्यं च भोजयामि नाम्या आसीनं नरसमुं चेतोदौ समवटतापदामो विविधः आसे सदा पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय विकाविधेम नमस्करोमि वेदासि देवी विविधता किल शास्त्र सारा दुर्गा से दुर्ग भव सागर नौर संग श्री कैटभारि हृदय कृता दिवास गौरी त्वमेव शशि मौलिकृता प्रतिष्ठा वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि वसोः पवित्रमस्यतारं वसोः पवित्रमस्यतारं मैं देवता सविता वसोः देखो जी सामने देखो महेंद्रगढ़ से आए हैं प्रधान जी, जीवन के आश्रय दाता हो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कमेटी की ओर से, सभी समस्त ग्रामवासियों की ओर से, और जितने भी बाहर गांवों से आए हुए हैं, आ रहे हैं, इन सभी का स्वागत है। खुडाना से वासुदेव शास्त्री जी का स्वागत है, श्रीधर जी गढ़ी से, पवन शास्त्री जी गढ़ी से, आप सभी का स्वागत है। अपना यथास्थान ग्रहण करें। और मैं कमल जी से, हाँ
जब कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं, यह हमारी सनातन समय की प्राचीन काल से ये पद्धति विधि नियम है कि सर्वप्रथम गणेश वंदना करें। हाँ भाई, हेलो हेलो हेलो। तो बड़ा ही खुशी का दिन आज ये परशुराम जी का जन्म उत्सव। हेलो हेलो। सदा भवानी दाहिनी तो सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, विघ्न हरे मंगल करे, गौरी सुत मैं लियो आसिरो आपको, तो रखियो भारी ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो बोलिए गणेश भगवान की। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे पे तिलक सोहे मुसकी सवारी, जय हो गणेश जय हो गणेश हरि जय हो गणेश हरि जय हो गणेश। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे पे तिलक सोहे मुसकी सवारी, बनो प्रतिपाली जग में हो, जय हो गणेश जय हो गणेश जय हो गणेश जय हो गणेश। ज्ञान की बेटे हैं मेरे सीने में सिया बहुत अच्छे भाई वीडियो क्या कर रहे हैं। और क्या बताए माँ, आते हैं तेरे दर पे यहाँ के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया से नवाली, सुनती हो सबकी विनती
दिखा दे, ऐसे रवानी मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवानी मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना। सुनील ना चलने दो। Long ago in Chennai, there lived a sage called Jamdagi. He was very knowledgeable and extremely generous. He had sacred cows. With which he was able to feed whoever approached him. His wife, Renuka Devi, was completely devoted to him. They had 7 children. Their 7th child's name was Rama or Parshuram. Every day Rama's mother Renuka Devi would go to the lake and collect mud from there, with which she would make a pot to collect water for her puja. One day, my lord, I will go to lake and bring water for puja. Go soon, bring the water. It's already time for puja. All right, my lord, I will return as soon as be possible. Renuka left for the lake. As she was collecting from the pot, she saw some Gandharvas who were messengers of Lord Indra flying in the sky. Oh, beautiful Gandharvas look. Is it really possible that celestial wind can be so good? Renuka Devi became so enraptured by the beauty of the Gandharvas that she could not concentrate on making the pot. Her admiration for the Gandharvas had caused her to lose her piousness. Hours passed. Yet she did not return home. By evening, said Jamdagi grew very worried. Being a highly pious saint, he was able to visualize what had happened. He became furious. Renuka, how can you do it with me? My son, where are you? My son, your mother is no longer my wife and no longer your mother. She has lost her wholeness. I want you to kill her and return. Father, you are holy and pious. We would gladly obey your every command, but our mother is also equally important to us. So please forgive her. Forgive? No, she cannot be forgiven. She has to be killed. She cannot return to this house. Now, obey me. Don't return home until you kill her. All the 6 sons refused to kill their mother and did not accept their father's order. If you are not prepared to follow my order,
I'll crush all of you to tar into the rocks. Immediately, all his 6 sons turned into statue of rock. Rama was shocked to see this horrible sight. Father, you are the greatest in all sages. But what will I do without my mother and brothers? My son, if you are prepared to do as I say, you shall be saved. Unless if you are not, you prepare the same fate. Father, I will obey your command and I will kill my mother and come back. My son, you are my only true son. Now, go and cut her head from her body. Rama left for the lake. My son, I don't know what I do. Cannot return home without making this food. Rama told his mother what had happened at their house. Renuka went into complete shock. My son, please, you kill me. I cannot live longer in this world. My son, please obey your father's command and kill me. Mother, please forgive me. My own brothers have turned into rogues. I have to obey father. Rama took his sword and cut off his mother's head. Create button in list. Double tap to activate, double tap and hold to long press. Create button. Double tap to activate, double tap and hold to long press. Immediately he broke down. Unable to see the sight of his dead mother, he returned to his father. My son, have you done as I asked? Yes, father. Yes, father. My son, I am really proud of you, son. Ask any boon, it will be yours. Father, I want 2 boons. Will you grant me 2? My son, you are only one who obeyed my words. Ask anything. Father, if you want, bring mother back to the life and free my brother from the curse you put on them. The sage was astonished to hear this. My son, you are one highly devoted and extremely intelligent. You will rule on the world one day. Now, go and attach your mother's head to her body and sprinkle some water on it. She will back to the life. My son, I can see. What happened? How did I come to life again? Mother, father gave you back your life. Let's go home now. Mother's feet and wiped her tears. Rama's mother to his father, and the sage was happy to have his family back. The time passes peacefully. One day, King Aditya was on his hunting expedition in the forest. Greeting to great sage. We have come for hunting. We are thirsty and hungry. Great king, please rest and take a bath. In meantime, I will arrange some food for you and for your soldiers. Sages have a sacred cow should be that could feed any number of people. Great sage, this food is so delicious. I never ate this food in my palace. Great king, you are always welcome to eat this food. The king realized that the food was prepared by milk obtained from the driving cow should be.
great sage, if I grant you some land, would you give your cow Surbi? The sage became furious. Leave immediately. That cow Surbi is for my puja, and you are very selfish. You foolish! You don't know who I am. I am the great king. I can take this cow forcefully from you. After this, king returned to his palace. The king sent some of his men to the ashram and asked them to steal sage cow. But when the soldiers reached there, the sage killed them. Hearing this news, king got angry. He went to the ashram and killed sage Jamdagini. गाना ले गया गाना मार के गाना ले गया Rama heard the news and came running to his house. What happened, mother? My son, the king is very selfish and that cruel. Just because your father gave him cow, he killed him. Don't worry, mother. I will destroy that king. Rama started meditating on Lord Shiva. As she was completely devoted to the Lord Shiva, he soon appeared in front of him. Rama, please open your eyes. Tathastu. My son, what do? Hey Lord Shiva, my father has killed and I cannot see my mother weeping. Please grant me power to destroy that king. I am giving you an axe that you can use as your weapon. As long as you have this axe, no one can kill you in the world. Take this. परसों ये सारा गिरना चाहिए Yes, my son, defeat with the cruelty and show them who we are. Kartivirya, I am coming. Parshurama reached the kingdom of Kartavirya. He killed everyone who obstructed his path to the king. Finally, he killed King Kartavirya with his axe.
और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान श्री विनोद जी शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लगभग 5 या 7 मिनट बाद हमारे बीच होंगे और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्थान से खड़े होकर के अपने मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। 5 या 7 मिनट बाद पार्टी का सम्मान करते श्रीमान उदय सिंह जी ढाणी वाले हम इस छोड़ते से पार्टी का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।
करें। बोल परशुराम की, बोल भगवान परशुराम की। श्री कौशिक जी जो हर एक निबंधन पर यहाँ पहुँचते हैं, आज भी जो है हमारे बीच श्री कौशिक यहाँ पहुँच रहे हैं। समस्त श्रोतागणों की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से और हमारी जो भाई परशुराम कमेटी है उसकी ओर से हम श्री कौशिक जी का यहाँ पहुँचने पर हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, संस्कार करते हैं। श्री श्री कुमार शास्त्री जी परवान जी फौजी का माला पहना के स्वागत करेंगे। श्री कौशिक जी का जोरदार तालियां बजाएं। बैठ जाइएगा। अंतिम लाइन में इस भजन की पूरी करता हूँ और फिर हम आमंत्रित करेंगे वक्ताओं को, जिन वक्ताओं ने अपने नाम नोट करवाए हैं अपने मुखारबिन से, जो आज के इस प्रोग्राम के निमित्त अपने विचार इस मंच के माध्यम से रखने। हाँ जी गुरु जी, ये जो स्टेज पे बैठे खड़े हैं एक बार बैठ जाए यार। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी देखिए एक बार और एक बार और आइए भगवान जी फौजी को मैं आमंत्रित करूंगा वक्ताओं की कड़ी, क्योंकि उनकी लिस्ट काफी लंबी हमारे बीच है। इनके इसी कड़ी में श्री अभिषेक शर्मा जी जो सरपंच प्रतिनिधि है डिग्रोता से तैयार है, लेकिन लास्ट लाइन में इस रागनी की पूरी कर लो। इसी बीच श्री उदय सिंह जी पूर्व सरपंच सतनाड़ी विनोद शर्मा जी को माला पहनाकर
आदरणीय विनोद शर्मा जी हरियाणा में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जिसका नाम है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि जहां भी विनोद शर्मा जी जाते हैं ताली बजाओ जोरदार। भाई बैठ जाओ एक बार। श्री शिव कुमार शास्त्री जी प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को पगड़ी पहना के सम्मानित करेंगे। श्री शिव कुमार शास्त्री जी प्रोफेसर श्री रामविलास शर्मा जी को बाना और पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। 500 रुपये पूरी जो है मोंटेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर हरीश वशिष्ठ उनके ओर से प्रदान होते हैं 500 रुपये। मेरी टीम का अभिनंदन मेरे मित्र भूदेव मिश्रा वो प्रदान करते हैं। आओ रामल जी ऊपर। श्री विद्यानंद जी लांबा भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कुछ तो मौसम ने, क्योंकि भगवान परशुराम जन्म जयंती है तो बादल ने सूरज के आगे आकर के मौसम में ठंडा कर रखा है, इसलिए आप भी ठंडे हो गए। थोड़ा जोर से बोलो, बोल भगवान परशुराम की। मुन्ना भाई से खाल सब तो जोरों बोले। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई भारत सरकार में मंत्री रहे श्रीमान विनोद शर्मा जी, यहाँ भगवान परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश शर्मा एडवोकेट हमारे जिला के अध्यक्ष, एक बार ताली बजा के सब लोग स्वागत करें। नारनौल गौड़ सभा के अध्यक्ष वरिष्ठ एडवोकेट भाई राकेश मेहता जी, महेंद्रगढ़ गौड़ सभा के अध्यक्ष दिनेश वैद्य जी, भगवान परशुराम सेवा समिति के तमाम अध्यक्ष, सतनाड़ी बड़े गांव के पूर्व सरपंच ठाकुर उदय सिंह जी, जिनकी सरपंची में ये जमीन का टुकड़ा सेवा समिति को दिया गया। उनके साथ पंच रहे संतू सिंह जी, महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, मुन्ना भाई शेखावत, दीवान सिंह जी शेखावत, नगरी क्योंकि शेखावता की है तो हम सारा वो पंजाबी में क्या करें, सत श्री अकाल ओपी टू आर। यहाँ उपस्थित पूजनीय माता बहनों प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग भाई क्योंकि आप तो एक था बसा, जब भी कोई जिमाड़ो हो, दीवान सिंह जी के हो, राजेंद्र जी के हो, तो आप सारा इकट्ठा हो जाओ। आज हमारे हरियाणा में बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के मुखिया भाई विनोद शर्मा जी यहाँ आए और वो
अब आ चिट्ठी लिखा ना भाई, थोड़ी लिखी घनी समझियो। विनोद जी ने मेहनत किया पूरे हरियाणा में इकोनॉमिक बैकवर्ड के आरक्षण के लिए, क्योंकि बाकी सबका तो आरक्षण हो ही गया था। इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लिए जो आरक्षण की बात आई, उसमें भाई विनोद शर्मा जी ने पूरे हरियाणा में यात्रा निकाली, जगह जगह गए, 445 जगह सभाएं किया। फिर इनकी मेहनत और उसके बाद आप लोगों ने 2014 में हमारी सरकार बना, श्री मनोहर लाल जी की रहनुमाई में आपने मुझे भी मंत्री बना के भेजा, उस पर हमने मोहर लगाई। आज इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के माध्यम से मेरे पास पंडित हरिराम दीक्षित जी जींद वाले, उन्होंने इन बच्चों की बहुत पैरवी की। रात के 12-12 बजे हमने बच्चों को, जो पुलिस में हुए, जो पटवारी हुए, जो बाकी कैटेगरीज में जिनकी भर्ती हुई, उनको रात के 12 बजे भी ज्वाइन करने का काम आपकी कृपा से हमने किया। उस बात के लिए भाई विनोद शर्मा जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आजकल तो मन में आवे उसी बात को लेकर के और धरना शुरू हो जाता है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विवेक्षणा कृपा परशुरामस्य ये सप्तहिते चिरजीव। ये मैं नहीं कहता, ये ग्रंथ कहता है। हमारा जो इतिहास है वो कोई 1400 साल पुराना नहीं है। कई लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये मार दिया, वो मार दिया। योगी आदित्यनाथ जी की जो विधानसभा की स्टेटमेंट है, नरेंद्र जी मरिया, काबरा, विजय कौशिक, वो वायरल कर रखी है। तू ट्रिब्यून में लिखे ना लिखे तेरी मर्जी है, पर लोगों के जहन में वो बात उतरी हुई है। और मैं बधाई देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ 50 लाख है, पाकिस्तान की आबादी कुल 22 करोड़। पाकिस्तान से बड़ी संख्या हमारे अकेले उत्तर प्रदेश की है। 44 साल में क्या पैदा किया उन्होंने? योगी आदित्यनाथ कोई पहले मुख्यमंत्री थोड़ी बने। हम कार सेवा में बुलंदशहर की जेल में थे। 30 अक्टूबर को गोली किसने चलाई? ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का सपना 500 साल से भारत की 36 बिरादरी राम मंदिर का सपना देख रही थी। आज नरेंद्र मोदी को वो बात की बधाई दी जाती है कि आपने, पहले एक इटालियन बोलता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे। आज हम तिथि बता रहे हैं, सत्यनारायण भगवान परशुराम के चरणों में खड़े होकर के हम तिथि बता रहे हैं। 1 जनवरी 2024 को रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान है। जिस भाई की श्रद्धा हो वो अयोध्या के लिए गाड़ी में बैठ ले, गाड़ियां भी फ्री में चलेंगी। ये रामराज्य का शुरुआत है। अब सारे लोग रोआ पिटा मच रहा है, बोले पुलिस कस्टडी में ये तिवारी ने, सन्नी सिंह ने, ये मौर्य ने क्यों मार दिया? अरे उनसे पूछो, 44 साल 1000 बहनों के मांग का सिंदूर पूछ दिया। 44 साल 104 मुकदमे जिस आदमी के खिलाफ हो, जब मुकदमा गवाही पर आए, या तो गवाह को मार देना या गवाह को गायब कर देना।
आज अधिक न कहते हो। भगवान परशुराम जन्म जयंती पर हमारा मौजूद मेहमान बड़े भाई विनोद शर्मा जी यहाँ पर आए हैं। मैं तो उरे राजस्थान का काकड़ पर बसा विनोद जी थे तो करनाल पानी की धरती आओ मारो तो पानी पीवन का पानी को रोड़ो रहे। आ तो 87 में मैं योजना बना दी या 27 गाँव की, तो आप सारी बातें समझते हैं। और नीम तो मैं मिलजुल के रख दे सारा, क्यों दोषी। और हमारे यहाँ वो नट और नटनी वो बोल बतला के नटनी को बांस पर चढ़ा देते हैं और फिर वो नीचे ढोलक की थाप लगावे, वो नट बूझे तने कौन दिखे, तो वो किमें लो पावलो दे बन कोई नाम नहीं बातो बोलो भाई मन तो दुलोठियो बोरो दिखा है, मन तो सतनाली वाला शेखाव दिखा है। तो विनोद जी आप सारी बातें समझते हैं, परंतु ये बाड़ू रेत का इलाका जो है ये ना तो कपड़े को चिपकता है ना ये मन को चिपकता है। ये बाड़ू रेत का इलाका ये दोस्ती के और श्रद्धा के पक्के लोग हैं। आज भगवान परशुराम जयंती पर ये मंदिर की नींव रखी है, इसको पूरा करेंगे और बाकी कसर मसर रह जाएगी तो मुन्ना ये मेरा शेखाव जजमान सारा दिखा ही है। मुन्ना भाई थे डरो मत। हाँ। और इस काम के लिए पवित्र काम के लिए कई बार इतिहास में लोग गलती से लिख देते कि भगवान परशुराम आतंकवादियों से धरती को मुक्त किया। भगवान ने अवतार भी लिया तो राजा दशरथ के यहाँ लिया। भगवान परशुराम ने राम भगवान का अवतार है, ये पहली उद्घोषणा भगवान परशुराम ने किया। लक्ष्मण तो आप जानते ही हैं फायर ब्रांड थे। जब वो सीता स्वयंवर हुआ और भगवान शंकर का धनुष तोड़ा, वो विवाद आपने देखा है। कई बार विद्वान लोग उस विवाद को लंबा खींचते हैं, परंतु उसकी असलियत यह बात है कि जिसके नाम में ही राम आता है, ऐसे भगवान परशुराम ने सबसे पहले राम ब्रह्म का अवतार है, राम भगवान का अवतार है। पहले उद्घोषणा दशरथ के कौशल्या के पेट से पैदा होगा, ये सबसे पहले उद्घोषणा भगवान परशुराम ने की थी। और आज हम सबको उनकी जन्म जयंती पर, सतनाली पर, राजस्थान के काकड़ पर मैं शिव कुमार जी को, उनकी प्रबंध समिति को, सबको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने यहाँ एक बैठने की जगह का प्रारंभ किया। और ये केवल बैठने की जगह नहीं होगी। आज सिखों के गुरुद्वारे जिंदाबाद क्यों है? क्योंकि उनमें लंगर का प्रबंध भी है, उनमें भजन भी है और भोजन भी है। आए गए को अपन जो समाज में लोग हैं, ये ऋषि सुनक जो इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर बना है, ये हिसार जिले में नेला पाबड़ा गांव का है। आदमपुर के चुनाव में जब मैं गया था, वहां इनकी फूटी हुई हवेली हम देख के आए थे। ये जो संस्कार है, आज हिंदुस्तान एकता और अखंडता के सूत्र में है, तो इस परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम वही मंत्र हिमालय में बर्फ की ढकी हुई चोटियों पर बोलते हैं, वही मंत्र समुद्र के किनारे बोलते हैं, वही मंत्र सतनाली में बोलते हैं। आर्यावर्ते भरतखंडे जम्बू द्वीपे अमुक गोत्र से जजमानम अमुक गोत्र से पुरोहितम अनुष्ठान करियसी। आज हिंदुस्तान एकता के सूत्र में है। कश्मीर से 10 लाख लोग उजड़ गए, पर अलग से हिंदुस्तान नहीं माना, क्योंकि इस देश की एकता और अखंडता हमारे कारण से है। आज इस संतति को औरंगजेब ने आकर के एक मण जनेऊ, जब तक वो नहीं उतारे, इतने कितने, एक जनेऊ में 5 ग्राम वजन होता है,
और इतने लोगों की हत्या करके वो भोजन करने वाला आदमी आज वो कहीं नामो निशान नहीं है, परंतु हम सब ज्यों के त्यों हाजिर हैं। हमारे पुस्तक जला दी, वेद जला दिए। 2 वेद जिसने कंठस्थ कर लिए उसको द्विवेदी कहने लगे, 3 वेद जिसने कंठस्थ किए त्रिवेदी कहने लगे, 4 वेद जिसने कंठस्थ किए उसको चतुर्वेदी कहने लगे। या तो बैठ जाओ या साइड में। परंतु हमने अपने वेदों की विधान को, पुस्तक को जला दिया पर कंठ में रख लिया। 350 साल हम पर अंग्रेज ने राज किया, उसको हिंदुस्तान से भगाने के लिए 1,56,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े। बंगाल में चापेकर बंधु, एक माँ की 3 संतान, सावरकर एक माँ की 2 संतान, गणेश सावरकर, विनायक सावरकर। वो अंडमान की जेल हमने कई बार देखी है, भाई विनोद जी ने भी देखी है। एक को कोरड़े लगते थे सुबह 11 बजे, एक को कोरड़े लगते थे शाम को 3 बजे। एक आदमी बकवास करता है कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं ये हूं। तेरी 50 पीढ़ी भी सावरकर कभी नहीं हो सकता, तू सावरकर नहीं हो सकता। सावरकर शहीद का नाम है, सावरकर स्वतंत्रता सेनानी का नाम है, सावरकर त्याग और बलिदान का नाम है। तू तो ये शब्दों का अर्थ ही नहीं था। इसलिए आज अधिक न कहते हुए एक 2,51,000 की छोटी सी आहुति मैं इसमें डालता हूं। और आदरणीय भाई विनोद शर्मा का, क्योंकि सतनाड़ी मेरा गांव है और मैं अपने गांव में अपनी पूरी सरदारी की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से इस भवन में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोल भगवान परशुराम की जी और समस्त नागौर दादरी जितने भी आए हैं, प्रधान उनको सबको मैं प्रणाम करता हूं और पत्रकार छायाकार बंधुओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। और विनोद जी का मैं सतनाड़ी पांव धराम पे पधारने पर तय दिल से पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। जी आपने 10% का जो आरक्षण दिलाया है और सभी वर्गों को साथ लेके चले हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस परशुराम कमेटी के लिए हमारे जो सरपंच प्रतिनिधि, जिनकी पुत्र हुजूर देवी सरपंच थी और मेरे भाई हिंदू सरपंच के सहयोग से, 20 पंचों के सहयोग से ये परशुराम पार्क का निर्माण हुआ था। और हमने एक बीड़ा खाया है कि आगे सर्व समाज के अंदर जिन भी उनके महापुरुषों की जो होगी ऐसे ही जयंती बनेगी, तो उसमें मैं सभी का सहयोग देने का काम करूंगा। जय हिंद, जय दादा परशुराम जी। मेरी तरफ से 11,000 रुपए भगवान परशुराम पार्क के लिए अपनी नेक कमाई से दे रहा हूँ जी। धन्यवाद। हरियाणा सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमान रामविलास शर्मा जी, अवसर सम्मानित मंच राकेश जी, दूर दराज से आए हुए सरपंच साहिबान, मेरी माता शक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, आप सबको भगवान परशुराम के चरणों में बलवान फौजी का राम राम नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना बड़ा नहीं हूं जितना आप लोगों ने भगवान परशुराम के चरणों में बुला करके और जो मान सम्मान इज्जत दिया है, आपसे वादा करता हूं मैं कहीं भी रहूं, किसी भी हाल में रहूं, आपकी इस इज्जत को कभी कम नहीं होने दूंगा। भगवान परशुराम सिर्फ नाम मात्र लेने से जो पूरी सृष्टि के 33 करोड़ देवी देवता है, सिर्फ भगवान परशुराम का नाम लेने से खुश हो जाते हैं। नाम लेने से आज जो ये भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया है,
जिस दिन भगवान ने जिस प्रकार देश का फौजी सीमा पर लड़ाई करता है, वो पीठ पीछे ये नहीं देखता कि मैं हिंदू को बचा रहा हूं, कि मुस्लिम को बचा रहा हूं, कि सिख को बचा रहा हूं, या मैं किसी राजपूत को बचा रहा हूं, या मैं किसी पंडित जी को बचा रहा हूं, या किसी यादव को बचा रहा हूं। उसी प्रकार आज अगर हिंदुत्व जिंदा है और हमारी जो ये संस्कृति हम छाती तान के कहते हैं, उसमें भगवान परशुराम सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़ी ताकत आज उनकी देन है। क्योंकि टाइम का अभाव है, मैं आप सबने मेरी बात सुनी, गलती हुई तो माफी चाहता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की सभा के अध्यक्ष श्री रामविलास शर्मा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री, एक बहुत ही कर्मठ और मजबूत कार्यकर्ता, नेता, मेरे भाई रामविलास शर्मा जी का इतिहास जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वर्षों वर्षों से ये लोगों की समाज की सेवा में लगे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम भगवान परशुराम वेलफेयर सोसाइटी सतनाली के अध्यक्ष श्री शास्त्री जी, हमारे सुरेंद्र कौशिक जी चले गए हैं, वो कार्य थे कोई, श्री राकेश मेहता जी, श्री दिनेश जी वैद, श्री देवकी नंदन शर्मा जी, शशिकांत शर्मा जी, दीक्षित जी, और सभाओं के मेरे आए हुए प्रधान जी शिव कुमार शास्त्री जी, अभिषेक शर्मा जी, रामलाल मिश्रा जी, मेरे साथ आए हुए मेरे साथी, और सतनाली में आप लोग सुबह से मेरे भाई बहनें बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप सबका स्वागत है। मैंने शुरू किया था रामविलास शर्मा जी से, शायद ये पहला मौका है रामविलास जी के हम स्टेज पर दोनों इकट्ठे बैठे हैं, बात कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा ही एक मजबूत और दूरदर्शी नेता के रूप में माना है। मैं चाहता था कि मैं पहले बोलूं और आप बाद में बोलें, क्योंकि आप अध्यक्षता कर रहे हैं समारोह की। लेकिन जो कार्यक्रम यहाँ के सभा वालों ने बनाया, उसके हिसाब से आपको पहले बुला दिया। मेरा मन था कि मैं पहले बोलूं और आप बाद में बोलें। बार बार ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि जब भी हम आपका नाम लेते हैं, रामविलास शर्मा जी पूर्व शिक्षा मंत्री, ये पूर्व वाला शब्द जो है इनसे हटा दीजिए, इनका पूर्व वाला शब्द मत लगाइए। अपनी सेवा के दम पर ये पहले भी मंत्री रहे। अगर मैं समझता हूं कि रामविलास शर्मा जी सबसे सीनियर मंत्रियों में है, मुझे नहीं लगता कि मंत्री पद का कोई बहुत लालच अब इनमें है
बहुत इन्होंने जिंदगी में बहुत राजनीति देखी है, उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन फिर भी सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, अपने लोगों की सेवा करने के लिए, अपने गांव की सेवा करने के लिए, अपने प्रदेश की सेवा करने के लिए जरूरी है कि आपके पास ताकत है। उसके बिना नहीं होती। आपने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उन व्यक्तियों को या उन बच्चों को जो 10% आरक्षण मिला, उससे हजारों बच्चों को फायदा पहुंचा। ये सही है, लेकिन वो आरक्षण जो मिला उसके बारे में कुछ भ्रांतियां भी थी। अभी मेरे साथी ने कहा कि 433 मीटिंगें हमने उस दौरान की, 2013 की बात, लगातार 6 महीने पूरे हरियाणा में। उसका कारण था यह कानून पास करवा दिया, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, पंजाबी, सबको, इन चारों के जो भी कोई बच्चे, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जो थे, उनके बच्चों को कहीं से ये बात उठने लगी दबी 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 कि ये आरक्षण का हमें क्या फायदा। ये तो आपने उन लोगों के लिए किया है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अब ये समझाना जरूरी था कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कौन हैं। मैं आप ही से पूछता हूं कि हमारे समाज में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले कितने लोग हैं? हमारे समाज में कितने ऐसे घर हैं जिनमें कम से कम एक सरकारी नौकरी जरूर है? हमारे समाज में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से ऊपर है? ये क्वालिफिकेशन थी कि जिस परिवार की आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, जिसके पास 5 एकड़ से जमीन कम है और जिसके घर में कोई दूसरी सरकारी नौकरी नहीं है, उनको इसका लाभ प्राप्त हो। तो ये बताइए कि क्या इसमें 95 to 97% चिल्ड्रन आर नॉट कवर्ड अंडर दिस? क्या 96-97% लोग इसके तहत आते हैं या नहीं आते? तो इस कानून में क्या खराबी है? जरूरत उनकी है और जिनकी जरूरत है उसको मिलना चाहिए, नहीं उसके मायने नहीं रहते हैं। हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की बात करें और मेरे मन में हो या किसी और के मन में हो कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी ये जो नौकरियां मेरे बच्चे को मिले, तो गरीब का क्या होगा? उसके बच्चे को कौन नौकरी देगा? तो इसको दूर करने के लिए जो मीटिंग्स करी थी, उन मीटिंग्स में इस बात का खुलासा किया था और ये कहा था कि इन बातों में मत रहो, अपने अपने कार्ड बनवाओ। एसडीएम बनाता है, तहसीलदार बनाता है, नायब तहसीलदार बनाता है कि मेरे पास ये होना चाहिए कि मेरा परिवार जो है इस आरक्षण को पाने के लिए, उसके पास इससे जमीन कम है, कोई हमारे यहाँ नौकरी नहीं है, हमारी यहाँ आमदनी 3 लाख रुपए से ज्यादा कम है, इसके कार्ड बनेंगे वो बनवा लीजिए ताकि आप अपना आवेदन पत्र भर सकें। इतना जाने के बावजूद भी क्या आप इस बात को मानेंगे कि महज सिर्फ अगर 2000 नौकरी 10% कोटे में निकली
तो सिर्फ 50 लोगों ने आवेदन दिया। 5 से 7% लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया। और प्रावधान ये था कि जो नौकरियां नहीं भरी गई क्योंकि किसी ने आवेदन नहीं दिया, अब सोच के देखिए कि अगर 2000 नौकरी में 100 आदमियों ने आवेदन पत्र दिया है तो 5% हुए, और अगर 1900 और भी लोग दे देते तो उन सबको नौकरियां मिल जाती। जो हम 11,000 नौकरियों की बात करते हैं, 2 लाख के ऊपर नौकरियां होती। अगर सभी ने अपनी जिम्मेदारी को समझ के आवेदन दिया होता सर, हमारा नुकसान हुआ। सही कहा रामविलास जी ने कि 2013 के बाद इनकी सरकार आई और उसके बाद बहुत सारे लोगों के जागरूकता आई, उन्होंने इस बात को महसूस किया, उनको बहुत सी नौकरियां मिली। रामविलास जी उस सरकार में दूसरे नंबर पे मंत्री बने, मुख्यमंत्री के बाद। 2019 में आपने इनसे नाराजगी जाहिर कर दी। ऐसा मत किया करो, ऐसा ना किया करो। जब कुछ बनने का समय आता है, आप नाराज हो जाते हो तो बनेंगे कैसे? फिर आपके काम कैसे करेंगे ये? मैं इनकी मन से इज्जत करता हूं, सही बता। भगवान परशुराम जी के बारे में कुछ दबे से शब्दों में रामविलास जी ने भी कहा। उन्होंने उस प्रसंग की बात की, सीता स्वयंवर में धनुष के बारे में चर्चा की, वहां क्या संवाद हुआ इसकी बात करी। मैं मानता हूं और इससे सहमत हूं कि कई बार इतिहास लिखे नहीं जाते। इतिहास पीढ़ियों दर पीढ़ियों दोहराए जाते हैं और उसके बीच में कहीं ना कहीं उसमें भ्रांतियां भी पैदा हो जाती हैं। एक बात को मानकर चलना पड़ेगा, भगवान परशुराम जी भगवान हैं, वो विष्णु जी के अवतार हैं और हम उनको भगवान मानते हैं। मैं हर समारोह में इस बात की बात करता हूं। आज आपने इस स्थान पर जो गांव की पंचायत ने आपको भवन बनाने के लिए दिया है, भगवान परशुराम जी का भवन बनाने के लिए दिया है, मैं उस पंचायत का बने हुए उस पंचायत के जो संरक्षक थे, उनके हेड थे, उनके प्रधान थे, वो आज प्रधान नहीं है शायद, जब ये स्थान दिया गया। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैंने यही जो बात सुनी। उन सबका धन्यवाद करता हूं और खुशी है इस बात की कि इस एरिया में, इतने बड़े एरिया में आप एक भवन बनाएंगे और भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे। बहुत खुशी की बात है। मैंने तो पंडित जी से कहा था कि आप बड़े नेता हैं, आप ही जाएंगे, आप भी कुछ कहेंगे कि आप दे रहे हैं, मेरी तरफ से भी अपनी तरफ बोल देना, जो आप देंगे भाई मेरा भी साथ में जोड़ के बोल देना, डबल हो जाएगा। ये भूल गए, मैं उसमें जमा कर देता हूँ। इन्होंने 2,51,000 दिए हैं तो मैं भी 2,51,000 दे देता हूँ। भाई उसमें बीच में बनाइए और कमी पड़ेगी तो और देंगे। ये कोई एक बात की बात है। भवन बनेगा, मूर्ति भी लगेगी और मेरा साथ रहेगा।
बनाने में। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैंने पहले भी कही है कि भगवान परशुराम जी के लिए उचित स्थान पर ही मूर्ति लगानी चाहिए। भगवान परशुराम जी का मंदिर उचित स्थान पर ही बनना चाहिए। ये मत सोचिए कि भगवान परशुराम जी को हम चौक में जाके मूर्ति लगाएंगे। भगवान की मूर्ति चौक में नहीं लगा करते, ऐसी जगह पे नहीं लगा करती जहां पे उनकी पूजा ना हो सके, उनकी सफाई का ध्यान न रखा जा सके। तो इस बात का भाइयों ध्यान रखना है कि हम अपने भगवान को भगवान के स्थान पर ही प्रतिष्ठित करेंगे और उसके लिए हम सब मिलजुल कर काम करें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत से बुद्धिजीवी यहां पर बैठे हैं, मुझे खुशी है इस बात की। मेरा भी कोई राजनीतिक जीवन अब कोई 50 साल होने वाले हैं, और जब मैं पहली बार एमएलए बना था उसको भी 43 ईयर्स ना 1980 में बना था। मैंने इतने वर्षों में इस बात को महसूस किया है। कहाँ से पढ़े थे? भरूर से? भरूर से? हाँ जी, 1980 में बना। मैंने भी ये महसूस किया है कि जब आपके पास ताकत हो फिर आएगी पंडित जी। जब आपके पास ताकत हो उस ताकत का इस्तेमाल जरूर करो, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने साथियों के लिए। क्योंकि ये कोई परमानेंट नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं रहती, आनी जानी चीज है, इसका मोह भी नहीं रखना चाहिए। जो चीज का पता है भी आज है कल नहीं होगी, उसका मोह भी नहीं रखना चाहिए, उसका इस्तेमाल करो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करो, लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करो। हमेशा याद रखेंगे और आपको दुआ देंगे। कभी ये मैंने कहा कि यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बड़े नेता बैठे हैं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने राजनीति सीख ली। मैथमेटिक्स सीखना बड़ा आसान है, इंग्लिश का एस्से लगवाना हो तो लिखना शुरू कर सकते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स को सीख सकते हैं। क्यों सीमित है, उनकी सीमित है कि कौन सी क्लास में कितनी केमिस्ट्री हमें पढ़ाई जाएगी, बीएससी में क्या होगा, एमएससी में क्या होगा, इंजीनियरिंग में क्या होगा, मैथमेटिक्स में हम मैट्रिक तक कौन सा करते हैं, कैलकुलस कब आती है, ट्रिग्नोमेट्री कब लगती है। जो क्लास में जाते हैं तो हमारी पढ़ाई का म्यार जो बढ़ता जाता है। लेकिन राजनीति की तो कोई था ही नहीं, राजनीति सीखना आसान नहीं है। राजनीति की था पाना और राजनीति को पूरे रंग से पूरी तरह से सीखना किसी के बस की बात नहीं। तो राजनीति का कोई मास्टर नहीं हो सकता, इसलिए इसके तो स्टूडेंट बने रहो। एक बात मान लो कि रहेंगे तब तक लोगों का प्यार आपको मिलता रहे। और आपका आज मेरे से किसी ने पूछा था कि आप बच्चों को जरा आने वाले उन यंगस्टर्स को राजनीति में आने की क्या प्रेरणा देंगे? तो मैंने कहा कोई प्रेरणा नहीं। राजनीति में या तो कोई
अपने लाभ के लिए आ रहा है तो मत आए, लंबी नहीं चलेगी, जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर सेवा के भाव से राजनीति में आ रहा है तो आ जाए, वो लंबी चलेगी। तो आप सबके मनों में एक प्रश्न मैं देखता हूं, भले ही पूछे या ना पूछे, एक प्रश्न आपके मन में आता है, सबके, आपके भी यहाँ बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि हमारा भविष्य क्या है, आगे क्या होगा। इस बात को मान के चलिए, आप भगवान परशुराम जी के ऊपर विश्वास रखिए कि आगे वही होगा जो कुछ करने में आप समर्थ होंगे, वही हो। अगर आप में वो शक्ति और ताकत नहीं है कुछ करने की तो नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। खुद को, आपको खुद ही अपने जीवन को, अपने भविष्य को संवारना होगा। उसके लिए आपको विश्वास पैदा करना होगा, संकल्प करना होगा, दृढ़ निश्चय के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं, आप सब जानते हैं, समय बदल गया। रामविलास जी आए, आकर इन्होंने कहा मैं हाथ डाल रहे थे, मैंने कहा पंडित जी पहले मैं डालूंगा। रामविलास जी ने कहा मेरे हाथ लंबे हैं। तो मैंने कहा फिर आप पहले डाल दीजिए। मतलब साफ है, मतलब साफ है कि अगर उनके हाथ लंबे हैं तो मैं कितनी भी कोशिश करूं डालेंगे तो वही, फिर चिक चिक करने की क्या जरूरत थी। तो भाई जो ताकतवर है चलेगी उसी की, जो सक्षम है चलेगी उसी की। अब बनना कैसे है ये मेरे बताने की जरूरत नहीं, आपको सब पता। कोई बच्चे नहीं है आप, जमाना बदल गया है। हमें भीख नहीं चाहिए, हम मांगने वाले नहीं, मांगनीय नहीं है। भगवान ने हमें शक्ति और बुद्धि दोनों दिए हैं, बस इस्तेमाल कीजिए, अपना हक लीजिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। और एक बात और कहूंगा कि जो लोग अपने हक की रक्षा नहीं कर सकते, उन लोगों को कहीं से और किसी से कोई सहायता नहीं मिलती। आपको ये फैसला करना है कि कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। और ये मान के चलिए, अभी अभी कुछ उदाहरण रामविलास जी ने दिए, आपको खुद महसूस होता होगा, मैं खुद इस बात को महसूस करता हूं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं गरीबी बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं कोई भी तकलीफ सह सकता हूं, लेकिन मैं अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। तो आपको अपना सम्मान और मान, इज्जत प्यारी होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि कुछ ऐसे समय आते हैं, कहीं गांव में है, शहर में है, अगर हमें अपनी कमजोरी का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं सिर्फ आपसे अंत में एक ही बात कहूंगा कि आप कमजोर नहीं हैं।
जो अपने आप को कमजोर मानता है, कमजोर समझता है, उसमें किसी बात की कमी है नहीं। आप कहीं भी किसी तरह से भी कमजोर नहीं है। और पिछले कुछ वर्षों में आपने ये महसूस किया है कि आप चाहें तो कोई भी मुश्किल है उसको दूर कर सकते हैं। तो वही एक मंत्र और है कि अगर कहीं किसी को कमजोरी महसूस हो तो हमारा फर्ज बनता है जो साथ हो, उसका साथी, उसका पड़ोसी, उसकी कमजोरी को दूर करें, उसको विश्वास दिलाएं कि हम साथ हैं, इकट्ठे होके एकता के साथ आगे बढ़ेंगे, कमजोरी नहीं होगी। आप लोगों का मुझे यहाँ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक अच्छे समाज की संरचना करनी है। मैं आपके साथ हूँ। मैं पंडित रामविलास शर्मा जी को भी ये आश्वासन देता हूँ कि जो भी कार्यक्रम आप और आपकी सरकार अच्छे कामों के लिए लेके चलती है, आपको साथ मिलेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे अंत में आप लोगों को नमन करना है कि इतनी संख्या में इतने उत्साह के साथ आपने ये फंक्शन किया है। और मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। इतनी संख्या में